ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں اس ویران علاقے میں پڑا تھا جب اچانک سے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی مجھے جگا رہا ہو۔ اس کے ہاتھوں کا لمس کافی نرم تھا۔ میری آنکھیں جیسے ہی کھلیں تو مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر اس نے سکھ کا سانس لیا۔ ایک پل کو اس کی ہری آنکھیں چمک اٹھی تھیں، پر میرا ہاتھ تھام کر وہ زاروں قطار رونے لگی تھی۔ لیکن میرے کانوں میں ابھی بھی چچی کی بات گونج رہی تھی، جنہوں نے کرشمہ کو جن زادی کہا تھا۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ میں نے کرشمہ سے محبت کی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ حسین خواب دیکھے تھے جن کی تکمیل کرنا چاہتا تھا، پر چچی کی اس بات نے تو میرے خوابوں کو چکنا چور کر دیا تھا۔ کرشمہ نے ابھی تک میرے ہاتھ تھامے ہوئے تھے، پر میں نے ایک جھٹکے سے اس بے وفا سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ مجھے اس سے خوف آ رہا تھا۔ ابھی میں آگے بڑھتا جب اچانک ہی کسی نے میرے سر پر بھاری بھرکم ڈنڈا مارا اور میں پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ میرا نام اسلم ہے۔ میں بھی عام بچوں کی طرح بڑے بڑے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے بڑا ہوا تھا۔ اماں بچپن میں ایک سفید شیروانی میرے لیے لائی تھی، پر جیسے ہی میں نے ضد کی کہ وہ مجھے شیروانی پہننی ہے تو اماں کہنے لگیں کہ جب تم پیاری سی دلہن لاؤ گے تو یہ شیروانی پہن کر جانا، اس سے پہلے یہ نہیں مل سکتی۔ میں اس بات پر کافی شرما جاتا، پر میری اپنی اماں کے ساتھ کافی اچھی بنتی تھی، جبکہ ابا تو باہر رہتے تھے۔ ایک روز میں نے اماں سے ضد کی کہ اماں مجھے بھی آپ کے ساتھ بازار جانا ہے۔ اماں کو میری ضد کے آگے ہار ماننی پڑی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ایک تیز رفتار گاڑی نے اماں اور مجھے اپنی زد میں کر لیا اور اماں اسی موقع پر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی، جبکہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا۔ میرا کوئی بھی سہارا نہیں تھا۔ ابا کو جیسے ہی پتہ چلا کہ میں معذور ہو گیا ہوں تو انہوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا، جبکہ چچا کو کہہ دیا کہ اسلم کا خیال رکھنا، میں ہر ماہ اس کا خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ چچا نے جیسے ہی پیسوں کا نام سنا تو فوراً ہی تیار ہو گئے، پر چچی کو میں ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میری معذوری کا وہ مذاق اڑاتی تھیں۔ ایک روز چچی کہنے لگیں کہ تمہیں تبھی گھر رکھوں گی جب تم خود کماؤ گے۔ میں یہ بات سن کر کافی حیران ہوا۔ چچی نے میرے سارے کپڑے اپنے بیٹے عاطف کو دے دیے تھے، اور ایک روز چچا جیسے ہی باہر گئے تو چچی نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کہ تمہارے چچا مجھے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دیتے، اس لیے اب تم مجھے پیسے لا کر دو۔ میں لنگڑاتا ہوا اس عجیب سے علاقے میں چلا گیا جدھر مجھے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یہ ملتان کا ایک پرانا علاقہ تھا۔ جیسے ہی میری نظر ایک بھکاری پر پڑی تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے سر تا پیر دیکھا تو کہنے لگا کہ تم شکل سے تو مانگنے والے نہیں لگتے، پھر یہاں کیوں آئے ہو؟ اس کی بات سن کر مجھے اپنی ماں کے ساتھ بتائے ہوئے وہ حسین پل یاد آنے لگے۔ میں آنسو بہانے لگا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا، پر اگلے ہی لمحے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے ارد گرد تیز ہوا چلی ہو۔ اس ہوا میں عجیب سی مہک شامل تھی۔ میں نے فقیر سے پوچھا کہ اچانک سے اتنی تیز ہوا کیوں چل رہی ہے، تو وہ میری بات کا مذاق اڑانے لگا کہ تم ہوش میں ہو؟ اتنی گرمی ہے اور اتنی تیز دھوپ ہے، جبکہ تم بول رہے ہو کہ ہوا چلی ہوئی ہے۔ اس کی بات سنی تو میں حیران ہو گیا تھا۔ میری دوستی اس کے ساتھ ہو گئی تھی۔ اس کا نام ارشد تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ مزار ہے اور ادھر کافی لوگوں کا رش ہوتا ہے، اسی لیے وہ دن کے 5,000 کما لیتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی تو حیران ہو گیا تھا۔ میں روز ہی اس جگہ آ جاتا، لیکن مجھے یہاں کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ اچانک ہی ایک روز میں ارشد کے ساتھ بیٹھا تو کسی نے میری جھولی میں 500 کا نوٹ پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا۔ ارشد کافی خوش ہوا، لیکن اس دن کے بعد سے مجھے بھی بھیک مانگنے کی لت لگ گئی تھی۔ سارا دن میں اسی مزار میں بیٹھ جاتا۔ میرا حلیہ ایسا بن گیا جیسے میں سچ مچ کا فقیر ہوں۔ میں پہلے دن جیسے ہی گھر پہنچا تو چچی نے میری جیب کی تلاشی لے لی۔ ان کو جیسے ہی پیسے ملے تو انہوں نے سارے پیسے چھین لیے اور مجھے ڈانٹنے لگیں کہ کل ان سے ڈبل لانے ہیں۔ میں بہت اداس ہو گیا تھا۔ اداسی اپنے چہرے پر سجائے اپنے روم میں داخل ہوا جب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے روم میں موجود ہو۔ میں نے وہاں نگاہ دوڑائی، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ نیند میں اچانک ہی مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے سر کے بال سہلا رہا ہو۔ مجھے ہمیشہ سے ہی خواب میں اماں دکھائی دیتی تھی، اسی لیے یہی لگا کہ شاید اماں میرے بال سہلا رہی ہوں۔
यही सोचकर मैं इस लम्स को पाते ही सुकून महसूस करने लगा था। अब ये रोज़ का मामूल था। मुझे इस लम्स से काफ़ी सुकून मिलता था। मेरी सारी थकान भी दूर हो जाती थी। अचानक ही मुझे एक ख्वाब आया। एक खूबसूरत सी लड़की दूर भाग रही है, जबकि मैं उसके पीछे उससे शेरवानी में भाग रहा हूँ। मैंने जैसे ही उस लड़की को आवाज़ लगाई तो उसने एक नज़र पलट कर मुझे देखा, पर इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देख पाता, जब चच्ची ने मुझ पर पानी का छींटा फेंका और मुझे नींद से जगा दिया। मैंने बहुत अफसोस किया, लेकिन फिर से अपने पुराने कपड़े पहनकर मज़ार में जाने लगा था। मैं जैसे ही मज़ार की पिछली तरफ गया तो वहाँ कोई रश नहीं था, पर मुझे उस जगह पर सुकून मिलता था। शाम हो गई थी और इक्का दुक्का लोगों ने ही मेरे प्याले में पैसे रखे थे। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी कि अगर चच्ची ने मुझे दोबारा से डांट दिया तो मैं क्या करूँगा। मुझे फिर से रात का खाना नहीं मिलेगा। मैं यही सोच रहा था जब मुझे किसी पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी, जो कि मज़ार की पिछली तरफ से आ रही थी। यह आवाज़ मेरे कानों में रस खोल रही थी। मैं उस आवाज़ के सहर में जकड़ता जा रहा था और अचानक ही अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। मेरा रुख अब उसी जानिब था जिधर से वो पायल की छन छन की आवाज़ आ रही थी। मेरे करीब बढ़ते ही वो आवाज़ और भी तेज़ हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र सामने गई तो एक लड़की गोल घूम रही थी, जबकि उसकी हरी आंखों में इतनी चमक थी कि मेरी आंखों में चुभन पैदा होने लगी। मैं बिला साख्ता उसके करीब बढ़ने लगा था, लेकिन इससे पहले कि मैं उसके पास जाता, जब अगले ही पल मैं आगे को गिर गया। मेरे हाथ में जो प्याला था वो फर्श पर गिर गया और सारे पैसे इधर उधर बिखर गए। ये सारा मंजर उस लड़की ने जैसे ही देखा तो पास आकर मुझे सहारा देने लगी और कहने लगी कि तुम ठीक तो हो ना। मैंने उसकी आवाज़ जैसे ही सुनी, मैं उस रसीली आवाज़ में खो सा गया, लेकिन अगले ही पल मेरी नज़र अपने प्याले पर पड़ी, जो बिल्कुल खाली हो गया था और पैसे हर तरफ दूर बिखर गए थे। मुझे डर लगने लगा था कि मैं अपनी चच्ची को क्या जवाब दूंगा। वो तो मुझे घर से ही निकाल देंगी। मेरे चेहरे पर खौफ के तासुरात देखकर वो हसीन लड़की बोलने लगी कि तुम फिक्र ना करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये कहते साथ ही उसने मेरे हाथ से वो प्याला ले लिया। कुछ देर बाद जैसे ही वो प्याला मुझे बढ़ाया तो वो पैसों से भरा हुआ था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि ऐसा कैसे हुआ है। इतने पैसे तो उस प्याले में पहले थे ही नहीं जितने अब उसमें मौजूद थे। मैं कोई सवाल करता जब वो लड़की बिजली की तेजी के साथ एकदम वापस चली गई। मैं हैरान हुआ था, लेकिन मेरा दिल बहुत खुश था। इसी खुशी के साथ मैं जैसे ही घर गया तो चच्ची ने वो प्याला मेरे हाथ से खींच लिया। मैं अफसरदगी से अपने कमरे में चला गया। जैसे ही रात हुई तो मुझे दोबारा से ऐसे महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे बाल सहला रहा हो, तो मुझे काफ़ी सुकून मिल रहा था। अचानक ही ठंडी हवा चलने लगी। मैंने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरे सामने एक हसीन लड़की प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं किया। ऐसे लगा जैसे मैं ख्वाब देख रहा हूँ। यही सोचते हुए मैं उसके करीब बढ़ने लगा, पर मैंने जैसे ही उसका हाथ थामना चाहा तो झटका खाकर पीछे गिर गया, क्योंकि यह सच था कि वो मेरे सामने थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जैसे ही मैंने उसकी हरी आंखों में झांका तो वो रो रही थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं। ये वही लड़की थी जो मुझे मज़ार पर मिली थी। ये देखकर बिला साख्ता मेरे मुंह से निकला कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? तो वो बोली, मैं अपनी रोदात तुम्हें सुना नहीं सकती, मैं इस वक्त काफ़ी मुसीबत में हूँ। मैं आगे बढ़कर उसके आंसू साफ करना चाहता था। जैसे ही मैंने अपना हाथ उसके चेहरे की जानिब बढ़ाया तो वो अचानक से गायब हो गई थी। ये देखकर मेरा दिल धड़कने लगा कि अचानक से ऐसा कैसे हो सकता है, और वो मेरे रूम में कैसे आई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। खौफ से मेरा बुरा हाल था, मेरा हलक खुश्क हो चुका था। यही सोचकर मैं पानी पीने किचन में चला गया, लेकिन अचानक ही मुझे चच्ची के रूम से चीखने की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को डांट रही हों। मुझे ये लगा कि शायद वो आतिफ को डांट रही हैं, लेकिन आतिफ उस वक्त घर कहाँ होता था, वो तो बाहर आवारा गर्दियाँ करता था। यही सोचकर मैं चच्ची के कमरे के पास चला गया, और मैंने जैसे ही कान लगाए तो वो बातें सुनकर मेरा वजूद कांप गया था। चच्ची किसी को कह रही थी कि अगर तुम मेरे बेटे के पास न गई तो तुम्हें वो ताकत नहीं मिलेगी जो तुम्हें चाहिए।
ये बात सुनकर तो मैं हैरान हो गया कि आखिर वो कौन सी ताकत है और ये चच्ची किससे बात कर रही हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं देख पाऊं कि वो लड़की कौन है, लेकिन मुझे बस उस लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी। लड़की कहने लगी कि ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं आपके बेटे के साथ रहूंगी। चची ने उसको जवाब दिया कि ठीक है, फिर तुम उसके कमरे में चली जाओ और उसका इंतज़ार करो। ये सब जानते ही मेरी रूह कांप गई। मैं जल्दी से अपने कमरे में चला गया। मैं अभी भी उलझन का शिकार था कि न जाने वो लड़की कौन है। मुझे बार बार वही लड़की याद आ रही थी जिसने मेरी मदद की थी, वही हरी आंखों वाली हसीना। लेकिन फिर मैंने अपना वहम समझ कर टाल देता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो लड़की ऐसा नहीं कर सकती, और उसका क्या ताल्लुक मेरी चच्ची से। मैं अपने कमरे में आ गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं जब भी आंखें बंद करता तो उस लड़की का डरा सहमा वजूद मेरी नज़रों के सामने आ जाता, जो मुझे सुकून से सोने नहीं दे रहा था। मैं अपने बिस्तर से उठ बैठा। अचानक ही मेरी नज़रें बाहर खिड़की पर गईं तो वहां मैंने आतिफ को देखा। मुझे न जाने ऐसा क्यों लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं भी सीधा नीचे आ गया, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र आतिफ के कमरे पर गई, वहां कोई लड़की बैठी हुई थी। ये वही लड़की थी जिसे चच्ची ने भेजा था। आतिफ ने अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया, जिसके साथ मैं हैरान हो गया। मुझे गुस्सा आ रहा था। मुझे ऐसा लगा था आतिफ की बातें सुनी जो उस लड़की से कह रहा था कि मैंने तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे दिया था, और मैंने अपनी अम्मा को यही कहा था कि अगर मैं किसी को अपनी ज़िंदगी में साथ रखूंगा तो वो तुम ही होगी। और अब आज देखो, तुम मुझे मिल ही गई। जब वो लड़की कहने लगी कि प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मैं मजबूर हूँ, मुझे जाने दो। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गया। मैं जान गया था कि वो लड़की ये सब नहीं चाहती और उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही है। लेकिन अगर मैं अंदर चला जाता तो मैं किसी कुएं में छलांग लगा लेता, क्योंकि ये मेरी अपनी ज़िंदगी का सवाल था। न जाने फिर चच्ची मेरे साथ क्या करती। यही सोचकर मैं वापस अपने कमरे में चला गया, लेकिन उस लड़की के लिए दुआ करने लगा था, जब अचानक ही एक ज़ोरदार चीख की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही नीचे गया तो मैंने आतिफ के रूम में देखा। उसकी हालत देखकर मेरी रूह कांप गई थी। वो ज़ारो कतार चीख रहा था कि मेरा गला छोड़ो, मैं मर जाऊंगा। पर उसका चेहरा सुर्ख था कि वो फर्श से ऊपर उठा हुआ था। उसका वजूद हवा में लहरा रहा था। उसकी आंखें बाहर को निकली हुई थीं। अगले ही पल वो उस फर्श पर गिरा, जिसके साथ ही उसकी सांसें खत्म हो गईं। उसकी गर्दन पर सुर्ख निशानात थे, जैसे किसी ने उसकी गर्दन दबोची हो, पर वहां कोई भी नहीं था। न जाने उसका वजूद हवा में कैसे था। ये सब मेरी समझ से बाहर था। अब वो मुर्दा हालत में अपने रूम में था। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो लड़की भी अब गायब थी, जो उस वक्त उसके कमरे में मौजूद थी। अगले ही पल चच्ची ने जैसे ही मुझे देखा तो वावेला मचा दिया और बोली कि तुमने मेरे बेटे को मार दिया है, तुम मेरे बेटे के कातिल हो। पर मैं जानता था कि आतिफ की मौत में मेरा कोई कसूर नहीं है। चच्ची ने पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने भी कहा कि मैं कसूरवार नहीं हूं, इसीलिए मुझे कोई जेल भी ना हुई। लेकिन चच्ची ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अब उसी मज़ार पर रहता था। जब रात होती तो वहीं चटाई बिछाकर मैं सो जाता था। अचानक एक रोज़ मुझे फिर से पायल की छन छन की आवाज़ सुनाई दी। मैं जैसे ही उसका पीछा करने लगा तो वही लड़की हरी आंखों वाली घूम रही थी। मैंने जैसे ही उसे देखा तो काफ़ी परेशानी में उसके करीब जाने लगा, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आज उससे पूछ कर आऊँगा कि वो कौन है। मैं जैसे ही उसके पास गया तो अचानक किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया। लड़की ने मुझे सहारा दिया। वो मुझे कहीं लेकर जाने लगी थी। जब मैं रुक गया और पूछा कि पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, तो वो लड़की कहने लगी, फ़िलहाल तुम्हें ये नहीं बता सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि तुम्हारी ये हालत मेरी वजह से हुई है। उसकी बात पर मैं हैरान हो गया। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी चीज़ से टकरा कर गिरा हूँ। तो वो बोली कि मैं इस हालत की बात नहीं कर रही, मैंने तुमसे छत छीन ली है, अब मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें सहारा दूँ। मैंने उसकी बात सुनकर नासमझी के आलम में उसे देखा, लेकिन वो मुझे अपने घर ले आई, जो कि एक छोटी सी झोंपड़ी पर मुश्तमिल था। उसमें 2 कमरे थे। उसने मुझे एक कमरे में बिठाया और मेरे लिए पानी लेकर आई। मैं हैरान था कि वो मेरी इतनी खिदमत क्यों कर रही है। कुछ देर बाद जब वो मेरे लिए खाना लाई तो मैं हैरान था कि उसने इतने कम वक्त में इतना ज़्यादा खाना कैसे बना लिया। लेकिन जो भी था वो खाना काफ़ी लजीज था।
अगले दिन मैं फिर से भीख मांगने मज़ार पर चला गया, जब अचानक ही मुझे एक औरत दिखाई दी जिसके फटे पुराने कपड़े थे। वो कहने लगी कि बेटा, मुझे मेरी झोंपड़ी तक छोड़ आओ। तो मुझे भी उस पर तरस आ गया था। उसने नकाब किया हुआ था। मुझे वो काफ़ी शरीफ लगी, लेकिन मैं जैसे ही उसे छोड़ने गया तो ऐसे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मैं जैसे ही पीछे देखता तो वहाँ पर कोई भी ना होता। मैं हैरान हो गया था। उस औरत को उसकी झोंपड़ी के बाहर छोड़कर फौरन ही मैं मज़ार पर वापस आ गया, जब मेरी जगह वही लड़की बैठी थी। वो काफ़ी परेशानी की आलम में यहाँ वहाँ टहल रही थी। मुझे देखते ही बोल उठी कि तुम्हें होश भी है? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं अपने रब को क्या जवाब देती? उसकी ये बात सुनकर मैं हैरान था कि भला वो ऐसी बात क्यों कर रही है। वो फिर से मेरा इंतज़ार करने लगी, और जैसे ही मैंने भीख मांगकर अपना प्याला भर लिया तो वो मुझे सहारा देकर अपनी झोंपड़ी में ले गई। ये बात मेरे लिए काफ़ी हैरानकुन थी, पर आज रात मैंने उसे पूछ लिया कि तुम हो कौन, और आखिर तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो? जब वो बोली कि मेरा नाम करिश्मा है, तो मुझे अपना खैर ख्वाह समझ सकते हो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। मैं भी उसकी बात पर खामोश हो गया। एक रोज़ वो मुझसे बोली कि तुम उस औरत के घर छोड़ने ना जाया करो। तो ये सुनकर मैं काफ़ी हैरान हुआ। मैंने उसको कहा कि जिस तरह तुम मेरे लिए खैर ख्वाह हो, बिल्कुल उसी तरह मैं उस औरत के लिए खैर ख्वाह हूँ। मैं अब रोज़ ही उस औरत को उसकी झोंपड़ी में छोड़ता था, लेकिन जब भी वो बोलती कि अंदर आ जाओ तो मैं इनकार कर देता। हर बार मुझे ऐसा महसूस होता जैसे मैं जब भी उसे छोड़ने जाता हूँ तो कोई मेरा पीछा करता है, लेकिन मैं जब भी पीछे देखता था तो वहाँ कोई भी ना होता। ये उस दिन की बात है जब मैंने हार मान ली और उस औरत की झोंपड़ी के अंदर चला गया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब उस औरत ने मोमबत्ती जलाई, लेकिन अगले ही पल मैं उसका चेहरा देखकर साकित हो गया, क्योंकि सामने मेरी चच्ची खड़ी थी जो मुझे हैबतनाक नज़रों से घूर रही थी। मैं समझ गया कि मैं बुरी तरह फंस चुका हूँ। मुझे करिश्मा की बात याद आने लगी जब उसने कहा कि मैं उस औरत की मदद ना करूं, पर अब पानी सर से ऊपर गुजर चुका था। चच्ची ने मुझे अगले ही पल धक्का दिया, इससे पहले कि मैं उठ पाता, जब चच्ची ने उस रूम का दरवाज़ा बंद कर दिया। अगले ही पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे में चच्ची ने जहरीली गैस छोड़ दी। तो मेरा सांस लेना मुहाल हो गया था, मेरा दम घुटने लगा था, खांस खांस कर मेरा बुरा हाल हो चुका था। मैंने काफ़ी मुश्किल से उस दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश की और मैं कामयाब हो गया था, पर अगले ही पल मैं दरवाज़ा बजाने लगा और कहा कि चच्ची ऐसा मत करें, मैंने आतिफ को बिल्कुल नहीं मारा। तो चच्ची चीख कर बोली कि तुम्हें मरने से कोई भी नहीं रो सकता। ये सुनकर मैं काफ़ी परेशान हुआ था, मेरा सांस बंद हो रहा था और मैं बेहोश होने वाला था, जब मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे में अजीब सी रोशनी पैदा हुई हो। मैंने अपनी आंखों को ज़बरदस्ती खोला। जब वो रोशनी तेज़ होने लगी और उसके साथ ही एक हीरो को देखकर मैं हैरान हो गया। उसकी आंखें बिल्कुल हरी थीं, उसके साथ ही मेरा वजूद बेहोश हो गया था। मुझे जैसे ही होश आया तो मैंने चच्ची की आवाज़ सुनी जो किसी को बोल रही थी कि तुम जिनज़ादी हो, तुम असलम को छोड़ दो, उससे तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। अगर तुम्हें अपनी ताकतें वापस चाहिए तो तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी रूह फना हो गई थी। मैंने उठने की कोशिश की, पर उस रूम में कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने खिड़की की जानिब नज़र दौड़ाई तो सामने करिश्मा को चच्ची के साथ देखकर मैं सारा मामला जान गया। करिश्मा की सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई थी, लेकिन मुझे देखते साथ ही करिश्मा ने मेरा हाथ थामा और एक विर्द पढ़कर चच्ची पर फूंका था, जिससे चच्ची ने अपनी आंखें बंद कर दी, जबकि मैंने कुछ देर बाद अपना वजूद हवा में उड़ता हुआ महसूस किया। उसके साथ ही हर जानिब अंधेरा था। मेरी आंखें तब खुली जब मैं करिश्मा की झोंपड़ी में मौजूद था। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि करिश्मा एक जिनज़ादी है। मुझे उससे खौफ आने लगा था। मैंने खुद को उससे दूर करने का सोचा, इसीलिए आधी रात को मज़ार पर चला गया। हर तरफ हवा चल रही थी जब अचानक ही एक सफ़ेद रोशनी के साथ करिश्मा मेरे सामने आ गई। पहले तो मैं डर गया, लेकिन खुद को संभाल कर उससे शिकवा करने लगा कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने अपनी सच्चाई मुझे क्यों ना बताई, और तुम मेरी क्या लगती हो जो तुमने ये सब मेरे साथ किया। तो वो मेरे पास आकर बैठ गई और मुझे अपनी दास्तान सुनाने लगी, जो कि कुछ यूं थी। मेरा नाम करिश्मा है, मैं एक जिन के सरदार की बेटी हूँ। मैं काफ़ी चंचल थी, हर वक्त शरारतें करती थी।
मैं अब्बा की इकलौती औलाद थी, जिस वजह से उन्होंने अपनी सारी ताकतें मुझे लौटा दी थी। पर अब्बा ने मुझे सख्ती से मना किया था कि तुमने अपनी ताकतों का ज़हूर कभी भी किसी आदमजात के सामने नहीं करना। मैंने अब्बा की बात तो मान ली थी, लेकिन अपनी शरारतों की वजह से मैं इस वादे से फिर गई थी, क्योंकि मुझे आदमजात की दुनिया में जाने का काफ़ी शौक था। मैं अपनी ताकत के ज़रिए अब आदमजात की दुनिया में चली जाती थी और अपनी काफ़ी जिनजादियों साथी को अपने साथ ले जाती थी। पर एक रोज़ मेरी चंद साथियों ने शर्त रखी थी कि तुम्हें किसी को अपनी ताकत के ज़रिए तंग करना है। मैंने उन्हें मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया तो मैंने भी उनकी बात मान ली। मुझे उस वक्त एक औरत दिखाई दी थी। मैं उस वक्त जामन के दरख्त पर बैठी थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस औरत को देखा तो फौरन ही जामन का दरख्त हिलाने लगी थी। वो दरख्त इतनी तेज़ी के साथ हिलने लगा कि वो औरत और उसका वो बेटा जो मुझसे चंद साल बड़ा था, वो दोनों डर गए थे, लेकिन अब वो ऊपर देखने लगे थे। अचानक ही मैंने उस औरत को देखा जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो मुझे देख सकती हो। मैं हैरान थी, क्योंकि हमें आदमजात कभी भी नहीं देख सकते थे जब तक हम खुद उनके सामने ना जाएं। मैं खौफ से कांपते हुए साथियों के पास चली गई थी, लेकिन अभी भी परेशान थी। मेरी नींदें उड़ चुकी थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मुझे कोई आवाज़ें लगा रहा हो। मैं एक रात सोने की कोशिश करने लगी जब अचानक ही मेरे वजूद में दर्द की टीस उठी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे वजूद को छीन रहा हो। मैं एकदम बेहोश हो गई थी। जैसे ही मुझे होश आया तो ये देखकर मेरी रूह फना हो गई कि मैं आदमजात की दुनिया में हूँ। मैं अपने अब्बा को याद करके रोने लगी थी। अब्बा ने मुझे जो ताकत दी थी, मैं अब उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करने लगी, पर मेरी वो ताकत कमज़ोर थी, जिस वजह से मैं वापस अपनी बस्ती में नहीं जा सकती थी। मैं उस जामन के दरख्त के पास बैठी रही थी, लेकिन अचानक से एक औरत कहकहा लगाकर मेरा मजाक उड़ाने लगी थी। वो तुम्हारी चच्ची थी, जिसने जादू के ज़रिए मेरी ताकतें मुझसे छीन ली थी, और मेरे करीब आकर कहने लगी कि ऐ छिपकली, तुमने मेरे बेटे और मुझे परेशान करके काफ़ी बड़ी गलती की है। अब देख, तुम्हारी सारी ताकतें मैंने तुमसे छीन ली हैं। ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मैं उस औरत के पांव पकड़ने लगी और फरियाद करने लगी, पर वो अपने घर चली गई। मेरी ताकतें काफ़ी कमज़ोर थीं। मैं अब किसी हद तक ही अपनी ताकत का इस्तेमाल कर सकती थी, जिसकी बदौलत मैंने उसके घर का पता मालूम कर लिया। पर जैसे ही वहाँ पहुँची तो मालूम हुआ कि तुम्हारी चच्ची एक जादूगरनी है। उसने जादू के ज़रिए मेरी ताकतें छीनी हैं। उसने मेरे आगे शर्त रखी कि मुझे रोज़ ही अपनी ताकत से उसे पैसे देने होंगे और उसे माला माल करना होगा। मैं ऐसा ही करती थी। अब मैं तुम्हारी चच्ची को हर चीज़ देती थी, पर एक रोज़ मैं छत पर अपने अब्बा को याद करके आंसू बहा रही थी, जब अचानक ही उसका बेटा छत पर आ गया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन मैंने खुद को गायब कर दिया था। पर मैं ज़्यादा देर तक उस जगह से दूर नहीं हो सकती थी जिधर मेरी ताकतें कैद थीं, क्योंकि ऐसा करने से मैं अपनी ताकतों को हमेशा के लिए खो सकती थी। इसलिए मुझे उस घर जाना पड़ता था। अगले रोज़ मुझे उस घर में एक रूम दिखाई दिया तो मैं उधर रहने लगी थी। चंद दिन बाद मुझे वहाँ पर एक लड़का दिखाई दिया जो कि काफ़ी बेचैन था। मैं उसे देखकर हैरान थी। उसे भी मेरी मौजूदगी का एहसास होने लगा था। मैं रोज़ उसके बाल सहलाती थी और उसके आस पास रहती थी। इस तरह मैं आतिफ से बच गई थी। वो लड़का मुझे देख नहीं सकता था, पर उसे शक था कि कोई तो है जो उसके आस पास रहता है। हाँ, असलम, वो लड़के तुम थे जिसने मेरी ज़िंदगी में कदम रखा था। मैं मज़ार में भी तुम्हारे साथ रहती थी और मैं ही थी जिसने तुम्हें गिरने से बचाया था। पर एक रोज़ तुम्हारी चच्ची ने मेरी इज़्ज़त का सौदा किया था। मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन आतिफ को सबक सिखाने का पूरा प्लान बना लिया था। जैसे ही मैं उसके रूम में गई तो वो मेरे करीब आने लगा, पर अगले ही पल मैं उसके सामने असल रूप में आ गई थी। मेरा खूनख्वार चेहरा देखकर वो चीखने लगा था। उसकी चीख सुनकर तुम भी वहाँ आ गए थे, लेकिन मेरा वजूद तुम्हें दिखाई नहीं दे सकता था। इसलिए तुम ये जान नहीं पाए कि आतिफ को मैंने मारा है, जबकि तुम्हारी चच्ची यही समझती रही कि तुम ही हो आतिफ को मारने वाले। इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं। मैं ये भी जानती थी कि तुम्हारी चच्ची ही वो औरत है जिसे तुम झोंपड़ी में छोड़ने जाते थे, तभी तुम्हारी हिफाजत के लिए मैं तुम्हारे पीछे जाती थी। पर मैं अपने किए की सज़ा तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती। इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि अगर तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ेगा तो मुझे ये भी मंजूर है। करिश्मा खामोश हो गई थी।
जबकि मेरी हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, पर वो बोली कि मुझे तुम्हारी चच्ची के पास जाना होगा, वरना अपनी ताकत को हमेशा के लिए खो दूंगी। वो ये कहते के साथ ही गायब हो गई थी, जबकि मैं यही सोचता रहा कि उसने मेरा कितना साथ दिया है। कुछ पल के बाद वो वापस अपनी झोंपड़ी में आ गई थी। वो मेरा वैसे ही ख्याल रखती थी। एक रोज़ मैं मज़ार पर गया जब किसी ने मुझे बेहोशी का रुमाल सूंघाया था। मैं उसी वक्त बेहोश हो गया था। मुझे जैसे ही होश आया, जो मेरे आसपास लोहे की सलाख थी, मैंने जैसे ही उन सलाखों को थामा तो एक झटके से पीछा हुआ। मुझे काफ़ी ज़ोर का करंट लगा था। मैं जान गया था कि ये भी चच्ची की हरकत है, वो मुझसे बदला लेना चाहती हैं। पर अचानक ही मुझे सामने रोशनी दिखाई दी। मैंने जैसे ही गौर किया तो वो करिश्मा थी। वो जिनजादी के रूप में मेरे पास आने लगी थी, लेकिन इससे पहले कि वो उन सलाखों को हाथ लगाती, जब मैंने उसे रोक दिया कि करिश्मा इधर ही रुक जाओ, यहाँ मत आना, वो रुक गई थी। मैंने उसे बताया कि मेरी चच्ची ने इन सलाखों में करंट छोड़ा है, जिस पर करिश्मा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने अपनी हरी आंखें बंद की और कुछ पढ़ने लगी थी, पर उसके साथ ही जैसे ही उसने मेरी जाने फूंक मारी तो कोई असर नहीं हुआ था। करिश्मा मुझे कहने लगी कि असलम, तुम्हारी चच्ची ने इस बार अपने जादू के जरिए तुम्हें कैद किया है। मेरा कोई भी मंत्र काम नहीं कर रहा। मैं भी परेशान हो गया था। मैंने करिश्मा को फौरन कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारी जान को भी खतरा है। जब वो कहने लगी कि नहीं असलम, जो कुछ भी हो रहा है ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम सब के हकदार नहीं हो, मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत है। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए मैं अपनी सारी ताकतें उस औरत को दे दूंगी। ये कहते साथ ही वो गायब हो गई थी। पर मैं काफ़ी परेशान था। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो मेरी वजह से अपनी रही सही ताकत गंवा दे। पर कुछ देर बाद ही चच्ची वहाँ दाखिल हुई तो वो काफ़ी खुश थी। उन्होंने मुझे आज़ाद कर दिया था। मेरी नज़र करिश्मा पर गई तो मैं उससे नाराज़ हो गया था, पर मैं चाहता था कि मैं करिश्मा की सारी ताकत उसे लौटा दूँ। मैंने पक्का आज़म कर लिया था। करिश्मा एक आदमजादी बन गई थी। वो फिर भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी। वो काफ़ी खुश थी। एक रोज़ मुझे मालूम हुआ कि करिश्मा की सालगिरह है। मैंने उसे कहा कि तुम्हें तुम्हारी सालगिरह का सबसे अच्छा तोहफा दूंगा। ये कहते साथ ही मैं एक आमिल के पास चला गया। उस आमिल को मैंने अपनी चच्ची की सारी सच्चाई बताई कि कैसे एक मासूम जिनजादी की सारी ताकत चच्ची ने अपने कब्जे में कर ली है, जबकि उसकी विरासती ताकत चच्ची के पास पहले ही थी। आमिल ने भी अपने ज़राए से मालूम किया तो कहने लगे कि तुम्हारी चच्ची उन ताकतों के जरिए काफ़ी लोगों पर काला जादू करवा रही है। मैं भी हैरान था। आमिल ने मुझे कहा कि इसलिए तुम्हें जिनजादी को मेरे पास लाना होगा। मैंने करिश्मा को सारी बात बताई, पर उसने इनकार कर दिया। मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। वो मेरी बात मान गई। इस तरह आमिल करिश्मा से मिले और करिश्मा को एक तरीका बताया। वो रोज़ रात को जंगल में चली जाती थी, लेकिन जैसे ही वापस आती तो उससे अजीब सी बदबू आती। मैं जब भी पूछता तो यही कहती कि ये तुम्हारी चच्ची के गुनाहों की बदबू है। मैं हैरान था। अचानक ही एक दिन करिश्मा सो रही थी जब उसके अंदर इतनी ताकत पैदा हो गई कि उसने मेरी गर्दन दबोच ली। ये अमल देखकर मैंने करिश्मा को होश दिलाया, पर उसके साथ कुछ देर वो बेहोश हो गई थी। मैं बहुत डर गया था। अगले रोज़ वो मुझसे माफ़ी मांगने लगी और बोली कि लगता है मेरी ताकत वापस आ गई है। मैं आदमजादों के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मेरे अंदर इतनी ताकत है कि किसी को भी मार सकती हूँ। ये कहते साथ ही वो ज़ारो कतार रोने लगी थी, जबकि मैंने उसे दिलासा दिया और आमिल के पास चला गया। आमिल ने कहा कि जिनजादी के पास इतनी ताकत आ गई है कि वो अपना आप खो सकती है, क्योंकि ये ताकत एकदम से आई है। मैंने परेशानी के आलम में उनसे पूछा कि क्या ऐसा हल है जिससे वो खुद पर काबू पाए। तो आमिल कहने लगे कि हाँ, अगर वो तुम्हारी चच्ची यानी कि अपनी दुश्मन से बदला लेगी तो इस तरह वो अपनी ताकत को काबू में कर सकती है। ये सुनते ही मैं परेशान हो गया था, क्योंकि वो मेरी चच्ची थी, लेकिन मुझे सब कुछ याद आने लगा जो उन्होंने मेरे साथ किया था। पर यह बात सच थी कि जिनजादी ने उनके बेटे को मारकर बदला ले लिया था। अभी मैं ये सोच रहा था जब आमिल कहने लगा, तुम गलत सोच रहे हो। जिनजादी ने आतिफ से उसकी गंदी सोच का बदला लिया है और चच्ची से वो अपनी ताकत छीनने का बदला लेगी। मैं करिश्मा के पास चला गया था, पर वो बोली कि तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती हूँ। लेकिन मैंने उसे तसल्ली दी कि तुम मेरी चच्ची से अपना बदला ले लो, इस तरह तुम ठीक हो जाओगी। वो पहले तो इनकार करने लगी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो मुझे अपने साथ लिए चच्ची के पास चली गई। जैसे ही चच्ची को देखा तो वो एक अंधेरे रूम में बैठी थी, जबकि उनके सामने कुछ पुतले मौजूद थे।
ہم سمجھ گئے تھے کہ چچی جادو کر رہی ہیں، پر اگلے ہی لمحے چچی نے اپنے جادو کے ذریعے کرشمہ کو فرش پر گرا دیا تھا۔ ابھی وہ میری جانب بڑھنے والی تھی اور میری گردن دبوچنے لگی تھی جب کرشمہ نے چچی کو بالوں سے کھینچنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اب چچی کو گول گول گھمانے لگی تھی۔ چچی کی چیخیں ہوا میں گونجنے لگی تھیں۔ مجھے کافی برا لگ رہا تھا، لیکن یہ سب ان کے کیے کی سزا تھی۔ چچی چکرا کر فرش پر گری تھی کہ کرشمہ نے چچی کے بالوں کو جلا دیا تھا۔ چچی میرے پیر چھونے لگی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی جب جن زادی نے چچی کو چلا کر کہا کہ بتا اسلم کو تم نے کیا کیا جرم کیا ہے؟ تو چچی روتے ہوئے بولی کہ اسلم، تیری اماں کو جان سے میں نے ہی مارا تھا اور تیرے ابا کو جادو کے ذریعے تجھ سے دور بھی میں نے کیا ہے۔ یہ سب سن کر میری روح کانپ گئی تھی۔ مجھے چچی سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ جب جن زادی بولی کہ اسلم، تمہاری چچی نے کافی نقصان کیا ہے اور لوگوں کا حق مارا ہے۔ لوگوں کو انصاف تبھی ملے گا جب تمہاری چچی کا کام تمام کیا جائے گا۔ اس کی اس بات پر میں خاموشی رہا۔ کرشمہ نے مجھے باہر بھیج دیا۔ میں بینچ پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ جب اچانک ہی کرشمہ باہر نکلی اور اس کے ساتھ ہی چچی کا گھر زوردار دھماکے کے ساتھ تباہ ہو گیا تھا۔ مجھے کافی افسوس ہو رہا تھا۔ میں اپنی اماں کو یاد کرتا رہا۔ اسی وقت ابا کا فون آیا اور بولے کہ بیٹا، نہ جانے ایسی کیا وجہ تھی کہ اب تک میں نے تم سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی۔ آج اچانک سے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ میرے آنسو بہنے لگے تھے کیونکہ میں تو اصل وجہ جانتا تھا۔ کرشمہ نے آگے بڑھ کر میرے آنسو صاف کیے تھے۔ میں کرشمہ کا کافی شکر گزار تھا۔ ایک روز وہ بولی کہ اسلم، مجھے اجازت دو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرا تمہارے ساتھ رہنا تمہاری جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اس لیے میرا واپس جانا بہتر ہے۔ پر میں نے اس کی بات سنی تو میرا دل بند ہونے لگا تھا، کیونکہ اب میں کبھی بھی اس کو خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے اسے کہا کہ ایسا مت کہو، میں تمہارے ساتھ ساری زندگی رہنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ یہ سوال سنتے ہی کرشمہ خاموش ہو گئی تھی، لیکن میری ضد کے آگے اس نے ہار مان لی اور اس طرح میری شادی کرشمہ سے ہو گئی تھی۔ پر یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ جن زادی ہے۔ اس نے اپنی طاقت کے ذریعے ہی ساری تیاری کی تھی۔ جیسے ہی اپنی شادی کی شیروانی دیکھی تو یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا تھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ شیروانی ہو بہو میری اماں والی شیروانی جیسی تھی۔ ابا بھی میری شادی پر آئے تھے، پر کرشمہ نے میرے آگے شرط رکھی تھی کہ تم نے اپنے ابا کو میری سچائی بتا دو۔ میں نے شادی سے پہلے ابا کو سب کچھ بتا دیا تھا، پر ابھی میری شادی کرشمہ سے ہونے ہی والی تھی جب ایک شخص روتے ہوئے شادی ہال میں داخل ہوا تھا۔ وہ میرے چچا تھے۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگے اور ابا کو کہنے لگے کہ بھائی معاف کر دو، میری بیوی ایسی عورت تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے بھی تمہاری امانت میں خیانت کی ہے۔ ابا نے معاف کر دیا تھا۔ مجھے بھی شادی کی جلدی تھی، اس لیے میں نے بھی انہیں معاف کیا اور وہ بھی ہماری شادی میں شریک ہوئے۔ میری شادی کرشمہ سے ہو گئی تھی اور اب ہم ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے، پر میں جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن اسے اپنی بستی واپس جانا ہے، کیونکہ ہم دونوں کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے تھے۔ اسی لیے ایک روز جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو مجھے معلوم ہوا کہ کرشمہ مجھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ یہ دکھ میری ساری زندگی کے دکھ پر بھاری تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، پر اس بات کی خوشی تھی کہ کرشمہ اپنے ابا سے ملے گی۔ لیکن کبھی کبھار مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرے آس پاس موجود ہو۔ میرے لیے یہ احساس ہی کافی ہے۔ میں اس سے ملنا چاہتا تھا اور ہمیشہ اسے یاد کرتا رہتا تھا۔ ایک روز ابا کہنے لگے کہ تمہیں زندگی میں آگے بڑھ جانا چاہیے اور کسی اور سے شادی کر لینی چاہیے، لیکن میں نے انکار کر دیا تھا۔ میں ایک رات جیسے ہی سویا تو خواب میں وہی ہری آنکھیں دکھائی دی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ سچ میں میرے قریب آئی ہو۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اسلم، تم اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ اور مجھے چھوڑ دو۔ میں اب تمہاری دنیا میں نہیں آ سکتی، لیکن میں ہمیشہ تمہارے پاس ہوں۔ تم جب بھی مشکل میں ہوگے تو میں تمہاری مدد کروں گی۔ میں اسے چھونا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی آنکھ کھولی تو معلوم ہوا کہ یہ ایک خواب ہے۔ پر میں پانی پینے کے لیے اٹھا ہی تھا جب مجھے محسوس ہوا جیسے میرے اندر کوئی تبدیلی آئی ہو۔ میری نظر اپنی ٹانگ پر گئی تو وہ بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے جیسے ہی 3-4 قدم چل کر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہو چکا تھا۔ میں پہلے کی طرح معذور نہیں تھا۔ ابھی خوش تھا جب میرے سامنے ایک تیز روشنی نمودار ہوئی، ایک ہیولا چھانے لگا تھا۔ وہ کرشمہ تھی۔ میں اپنے چمکتے چہرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مجھے خوش دیکھ کر مسکرانے لگی تھی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گیا جب اگلے ہی پل وہ وہاں سے غائب ہو گئی تھی اور میرا چہرہ پھر سے مرجھا گیا تھا۔
ابا کو جیسے ہی بتایا تو انہوں نے سختی سے منع کیا کہ اپنی سوتیلی اماں یا اپنے چچا کو یہ بالکل مت بتانا، کیونکہ یہ بات حقیقت سے دور ہے اور کوئی بھی اس پر یقین نہیں کرے گا۔ میں بہت خوش تھا کہ کرشمہ نے ایک اور دفعہ میرا دل جیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ وفا کرتے ہوئے میں نے یہ عزم کیا تھا کہ اپنی زندگی میں اس کے علاوہ کسی لڑکی کے بارے میں نہیں سوچوں گا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔